Hello all, hi. So we have completed our gravitational chapter. Okay, now from the exercise section, we are going to see some numericals which can be uh, quite important for the as far as exam is concerned. So we are going to see them one by one. So I am going to cover three or four numerical in this uh, video lecture. uh, some of the numericals means rest of the numericals are same. We have seen them in our previous lecture, so I request you all to please go through it. Okay, now we are going to start with our first numerical. Okay, see over here. Okay, the first numerical here, this one, a stone thrown vertically upwards with initial velocity u. Okay, एक पत्थर है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी u. ओके, रीचेज अ हाइट h, हाइट क्या रहेगी h. बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले उसकी हाइट क्या थी h. ओके, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन. ओके, जो टाइम उसको ऊपर जाने को लगा वही टाइम उसको नीचे आने को लगेगा, ये कंडीशन है. ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है. ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द कंडीशन. सपोज ऑन दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट दैट स्टोन हैज बीन थ्रोन. ओके, now from this point the stone has been thrown. Okay, the stone has been thrown from this point at which height h. so stone यहाँ से छूट के यहाँ तक गया. ठीक है, फिर stone यही पॉइंट से नीचे आया. ठीक है, जाने का पाथ कौन सा था ए बी, आने का पाथ क्या है डाउनवर्ड पाथ क्या है सी डी. टाइम देखो, टाइम जाने के लिए टाइम t1 लगा, आने के लिए टाइम t2 लगा. अब हमने पहले भी देखा है t1 इज इक्वल टू t2 होता है, लेकिन नाउ वी हैव टू प्रूव इट. ओके, now we have to prove this thing that t1 is equal to t2. Okay, at height h. Now we are going to see. Okay, now we are going to start from this. Okay, we know these two equations, right? According to Newton first and second equation of motion, we know it, right? V is equal to u plus at, right? S is equal to ut plus half at square. Okay, these two equations we know, right? Now from this equation what we'll do, we will find the value of this u from this equation and we will put this value in this equation second. Okay, now what we are doing over here is v is equal to u plus at. Now we have to find the value of u, so this thing is positive, so if we are taking this value in this direction or this side, what will happen, this positive will become negative. That's why, so what will happen, v is equal to this positive becomes negative minus at is equal to this u as it is. Okay, now we will rearrange it, is u is equal to v minus at. Okay, v minus at. Now we will put this value of u in this equation second. Okay, now putting the value of u in equation 2. Okay, s इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या था v माइनस ए टी, हमने u की जगह पे रख दिया v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, हाफ ए टी स्क्वायर जैसा का वैसा. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से, राइट? 1 मतलब 1 1 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू टी वी टी माइनस जैसा का वैसा ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर, बिकॉज टी स्क्वायर, राइट? दिस इज math. Okay, plus half at square, right? Now we know this one. Now if we subtract this half at square from this 180 square, what will happen, we will get the negative sign of larger value. Okay, so it will become vt minus half at square. Now I'll again explain this why we got this half at square. Okay, we all know, right, this minus and plus. Okay, this is in addition, but who is greater, half 80 or 180? 180 is greater, right? हाफ मीन्स आधा, ये पूरा है, पूरे में से आधा का कितना बचा, आधा, पूरा का साइन लग जाएगा आधा, राइट? सो वी टी इज वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपना फाइनल इक्वेशन है, राइट? अब हमारे पास अभी दो कंडीशन है, विच आर दोज? नाउ फॉर अपवर्ड कंडीशन एंड डाउनवर्ड कंडीशन. व्हाट विल डू नाउ फॉर अपवर्ड कंडीशन, व्हाट विल हैपन, s का वैल्यू क्या रहेगा, s माने डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s इज h, s का वैल्यू क्या है h, t का वैल्यू क्या था t1, a का वैल्यू क्या है माइनस g. अभी माइनस g मैंने क्यों लिया है, बिकॉज
वी आर गोइंग अपवर्ड, राइट। वी मीन्स यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे, स्टोन इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, स्टोन इज गोइंग अपवर्ड, ओके। दैट्स वाई अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको पहले भी बोला है, अपवर्ड डायरेक्शन में जी का वैल्यू क्या रहता है, माइनस, ओके। दैट्स वाई इट इज माइनस। यू का वैल्यू यू रहेगा क्योंकि हमको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, राइट, ऊपर भेजने के लिए। एंड v का वैल्यू एक जगह पे जाके रुक जाएगा तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। v का वैल्यू 0 रहेगा, t का t1, a का वैल्यू -g और t का वैल्यू t1, फिर से s का वैल्यू h, ठीक है। ये हम पूरा यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। हाँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 s का वैल्यू क्या था, h, v का अभी रखते हैं, t का वैल्यू t1 माइनस हाफ, a का वैल्यू -g t1 स्क्वायर, ओके। v का वैल्यू क्या रखा था, 0 इंटू t1 माइनस हाफ माइनस g t1 स्क्वायर, ओके। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस, ओके, हाफ g t1 स्क्वायर, ओके। सो 0 प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग, ओके। h इज इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर, ओके। सो हमको चाहिए t का वैल्यू, राइट, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच जी। अब जैसा का वैसा टी का वैल्यू नहीं निकालते, t1 स्क्वायर ही रहने देते, ठीक है। t1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच जी, ओके, इज इक्वेशन 4। नाउ वी हैव टू शो दैट t1 इज इक्वल टू t2, राइट। t1 इज इक्वल टू t2, तो हमको t2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी t1 की वैल्यू निकाली तो हमको अभी t2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2h/g, ठीक है। अब देखते फॉर डाउनवर्ड कंडीशन, हमने अपवर्ड कंडीशन देखा था, अब डाउनवर्ड कंडीशन s इज इक्वल टू क्या रहेगा, h, हाइट तो सेम ही रहेगी, राइट, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, गोइंग अपवर्ड और गोइंग डाउनवर्ड दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम, राइट। t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t2, ओके, t विल बिकम t2, u इज 0। अब u 0 क्यों आया, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं फ्री फॉल के कंडीशन में अगर बॉल को आने दे रहा हूँ, राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, नीचे से ऊपर जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पे तो 0 हो गया था ना वो, राइट। सो यहाँ ऊपर जाते वक्त v 0 रहता है, नीचे आने तक ये 0 रहता है, राइट। तो u विल बिकम 0 एंड a इज इक्वल टू g। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 3 दिखा उसमें तो u था ही नहीं, राइट, u था क्या था, राइट, नहीं था, राइट, u नहीं था, राइट। तो हम u हमको किस में मिलेगा, u विल गेट इन इक्वेशन नंबर 2, विच इक्वेशन नंबर 2, I'll show you which equation number 2, this one, right. I will take this equation number 2, okay. I will take that equation number 2. From equation number 2 s is equal to ut plus half at square। s का वैल्यू क्या है, h, t का u का वैल्यू क्या है, 0, 0, t का वैल्यू है t2 प्लस हाफ g2 स्क्वायर। हमने a यहाँ पे g क्यों लिया है, क्योंकि हम डाउनवर्ड में है, stone is going downward, that's why that is the direction of gravity, right, that is why it is plus, okay। 0, anything multiplied to 0 is 0, right, half gt2 square, half gt2 square, right, so half gt2 square, because anything adding to 0 is that thing, right, half gt2 square। Now we will find the value of t2 square, right, t2 square is equal to ट्वाइस, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, और g यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, करेक्ट। सो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन g। अगर आप देख पाओगे फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 t1 का वैल्यू भी ट्वाइस h अपॉन g है, t2 का वैल्यू भी ट्वाइस h अपॉन g है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। दैट इज वाई फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 t1 एंड t2 आर इक्वल, t1 एंड t2 आर इक्वल, जो हमको दिखाना था। मतलब स्टोन को ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो सेम रहता है। दैट मीन्स t1 इज इक्वल टू t2, हम स्क्वायर निकाले या फिर यूनिट में वैल्यू निकाल, दैट विल बी सेम, t1 निकालो या t1 स्क्वायर निकालो, दैट इज सेम, राइट, फॉर हियर ओनली, राइट, फॉर दिस एग्जाम्पल। Okay, now going forward we will see our next example. Before that we will read that question.
What was the question? Yeah. Question is this one. Okay, question number 4. Question number 4. Okay, so question number 4. What is the question? Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t. We all know it, right? We have seen this. Where in a Kepler's third law, right? Where the square of period of revolution is directly proportional to distance cube, right? So वही है ये, right? Prove that if it was a distance twice r, मगर r का distance हमने twice कर दिया from the star, its period of revolution will be under root 8t. ठीक है, तो हमको क्या है, हमारा डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, r का ट्वाइस r हो गया, तो t पे क्या वैल्यू पड़ेगा, तो हमारे पास अभी दो कंडीशन है, t1 का ये वाला फॉर्मूला, t2 का ये वाला फॉर्मूला रहेगा, और हमको दिखाना है t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 t1, तो हम ये बता पाएंगे। ठीक है, करते हैं। ओके, नाउ वी ऑल नो द केपलर्स थर्ड लॉ, राइट? व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसा रहेगा, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे, कांस्टेंट जब नहीं रहेगा तो क्यूब ऑफ r1 स्क्वायर मीन्स क्यूब ऑफ r1, राइट? r1 क्या है, डिस्टेंस, जो हमने अभी इसमें देखा, राइट? सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने t को t1 कर दिया, r को r1 कर दिया, क्योंकि हमको क्या है, कंपैरिजन करनी है, राइट? दैट्स व्हाई। नाउ वी ऑल नो r2 इज इक्वल टू ट्वाइस r1, यहाँ पे वो बोल रहा है, राइट? r2 इज इक्वल टू ट्वाइस r1, ये 1 है, राइट? क्योंकि वो बोल रहा है r की वैल्यू क्या लो, ट्वाइस r1 करो, मतलब सेकंड कंडीशन r2 इज इक्वल टू ट्वाइस r1। हम ये क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, विच वैल्यू, no, not putting in 1, this will be wrong, I am so sorry. We are not putting, we are directly taking equation for 2. Okay, we are directly taking equation from for 2, so it will prior to this, what will be the equation I am writing over here? t2 square is equal to k r2 cube. Okay, k r2 cube, this is the equation. Okay, second one. Okay, now putting in 1 was incorrect, I am so sorry for that. Okay, t2 square is equal to k r2 cube. Okay, now what is the value of r2? What is the value of r2? r2 is equal to twice r1, so we will put this, now we can say it putting in equation 2, but let it be now. r2 is equal to twice r1, so what we'll do, we will put this twice r1 in r2's equation, right? This equation, so what will it will become, t2 square is equal to k twice r1 cube। देखो ये क्यूब नहीं भूलना है, ये क्यूब पूरा ट्वाइस r1 को है, सिर्फ r1 को नहीं रहेगा, ट्वाइस r1 को रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? क्यूब कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? व्हाट इज 2 इंटू 2? 4, 2 इंटू 2 8। व्हाट विल हैपन देन, व्हाट विल द वैल्यू, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। ओके, दिस इज रफ, 2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8। ओके, नाउ 2 क्यूब 8, r1 का क्यूब r1 क्यूब, नाउ इट इज सेटल्ड, राइट? सो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाहर निकाला k r1 क्यूब, 8 k r1 क्यूब, राइट? अब हमको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस k r1 क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस k r1 क्यूब, t1, राइट? t1 square, what is the value of k r1 cube, t1 square, so we will put this value in above equation, so it will become t2 square is equal to 8 t1 square। now taking square root, इसका हम अगर स्क्वायर रूट लेते तो क्या मिलता है, t2 is equal to, देखो अंडर रूट 8 t1, right? so this is what we had to prove, right? so t2 second condition is under root t1, so हम लिखेंगे when r is equal to twice r, the value of t is equal to under root of 8t,
this is the thing which we have to prove. Okay, hence prove. Okay, and we'll move towards our next numerical. This numerical 855b. Okay, the radius of planet A is half of the radius of planet B. मतलब क्या बोल रहा है, दो planets है A and B, एक का रेडियस दूसरे के रेडियस से हाफ है, ठीक है। आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी, मतलब अगर बी का रेडियस 500 रहेगा तो आर ए का रेडियस क्या रहेगा 250, राइट। हाफ कर देंगे, 100 रहेगा तो 50, राइट, लाइक दिस। ओके, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, ठीक है, मतलब मास ऑफ बी क्या रहेगा एम बी। ओके, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी so that the value of G on B is half of that of the value of A. What must be the mass of B, मतलब हमको MB निकालना है, हमको प्लैनेट नंबर प्लैनेट B का मास निकालना है, जबकि और उसमें भी क्या दिया है उसने, जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन B, मतलब B का ग्रेविटी इज हाफ ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ ए। मतलब अभी लेकिन देखो इसका रेडियस कम है हाफ से, लेकिन इसका ग्रेविटी हाफ से, लेकिन इसका ग्रेविटी क्या है, इसका हाफ है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमको क्या निकालना है, मास ऑफ बी मास ऑफ ए से कितना बड़ा है, राइट, या कितना है मास ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए हमको निकालना है, ठीक है। अब गिवन क्या दिया है यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो रियली सिंपल न्यूमेरिकल, वी हैव सीन इट प्रीवियसली। ओके, बट दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट। ओके, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू आर ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू आर बी, मास ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू एम बी। ओके, नाउ we have seen radius of planet A is equal to half of radius of planet B. Okay, मतलब RA is equal to half RB, 1/2 RB. Okay, now gravitation acceleration due to gravity of B is equal to half of gravitation acceleration due to gravity of A. Okay, मतलब GB is equal to half GA, और हमको निकालना है MB मतलब मास ऑफ प्लैनेट B। अब ये कैसे निकालेंगे, राइट, इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमारे क्या रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो हमारे पास फॉर प्लैनेट A हमको G का फार्मूला पता था। G का फार्मूला क्या था, G इज इक्वल टू GM/R, राइट, R स्क्वायर, है ना। तो हमने इसको क्या RA के लिए अलग लिखा, RB के लिए अलग लिखा, है ना। तो GA इज इक्वल टू GMA/RA स्क्वायर, GMA/RA स्क्वायर, और फॉर प्लैनेट B व्हाट विल हैपन, GB इज इक्वल टू GMB/RB स्क्वायर। समझ में आया, राइट। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने क्या कर दिया, प्लैनेट A के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख दिया, एंड फॉर प्लैनेट B ऑल्सो वी हैव रिटन इट डाउन, GMB/RB square. But we know from this GB is equal to half GA. GB is equal to half GA. Now GB is equal to half GA, and what is the value of GA? GMA/RA square. So what we have done, we have put the value of GA in this equation. Okay, so GB is equal to half into GA, GMA/RA स्क्वायर। समझा, हमने क्या किया, इस GA का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, तो GB इज इक्वल टू हाफ इंटू GMA/RA स्क्वायर। ओके, नाउ वी ऑल नो RA इज इक्वल टू हाफ RB, रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, RA इज इक्वल टू हाफ RB। ओके, और हम क्या करेंगे, ये जो RA है यहाँ को हम हाफ RB से उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो RA इज इक्वल टू हाफ RB होल स्क्वायर, हाफ जैसा का वैसा, GMA जैसा का वैसा। RA को हमने वी हैव रिप्लेस्ड RA बाय हाफ RB होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/2? 1/4। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/2? It will be 1/4. And what is the square of
RB square. What is the square of RB? It will be RB square. Now it is in denominator, it will go numerator and 1 will in denominator. So it will, if we rearrange it, half into 4 above 1 down, right? 1 by 2 into 4 by 1 into GMA upon RB square. GMA upon RB square. ओके, अब हमको वैल्यू किसका निकालना था? B का, राइट? तो B का वैल्यू जितना भी है हम B के साइड पे लेके जाएंगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन, GB यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में GB इंटू RB स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिनोमिनेटर में GB इंटू RB स्क्वायर अपॉन G. ओके, व्हाट विल हैपन, GB इंटू RB स्क्वायर अपॉन G. इट बिकम 4/2 2 MA. क्या हो जाएगा? MA. तो GB इंटू RB स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू ट्वाइस MA. ओके, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, राइट? हमको इसका वैल्यू पता भी है. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमने लिखा था, राइट? वो हमने ऐसे ही नहीं लिखा था. ये जो इक्वेशन हमने लिखा है GB इज इक्वल टू GMB अपॉन RB स्क्वायर, इससे हमको क्या है, किसकी वैल्यू मिलेगी? MB की, राइट? MB की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इक्वेशन क्या था? GB इज इक्वल टू GMB अपॉन RB स्क्वायर, राइट? GB इज इक्वल टू GMB अपॉन RB स्क्वायर. MB का वैल्यू निकालते हैं. MB का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल हैव टू डू, वी विल हैव टू टेक दिस टू दिस साइड एंड G टू दिस साइड, राइट? सो व्हाट विल हैपन, GB इंटू RB स्क्वायर. वाई? बिकॉज इट वॉज इन denominator and it will go into numerator, right? In multiply, and this G was in multiplication, it will go into dividation, right? So GB is into RB square upon G. यही हमको निकालना था. उसकी वैल्यू क्या है? MB. मिल गया हमको, right? So what we'll do, we'll put the value of MB here directly. We will put the value of this whole equation is equal to MB in this equation. So putting in equation number 3, what are we getting? MB is equal to 2MA. This is what is the answer given in our, right? MB is equal to twice MA. So guys, you can solve this numerical by various method. Whatever the method you want to use, you can use. But I find this method is really simple, because we just have to go into flow, right? We don't have to do any ratio or anything, right? We just have to plain, we have to just go by flow to get the value of G first, okay, and then start finding MB if you get this in example. Okay, now we are going to see one example on mass and weight. Okay, this will be our last example. Okay, the rest of the examples are really easy, you can find it out. Okay, we'll see. Okay, this C example 5C. The mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 न्यूटन. हमको क्या दिया है? मास दिया है एंड वेट दिया है. किसका? एक ऑब्जेक्ट का. किस पे? अर्थ पे. कितना है? 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक, राइट? मास कितना हो जाएगा फिर? 5 kg. What will happen to weight? Weight will become 49 न्यूटन. ओके, सो वी गॉट द वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. मास भी मिल गया, वेट भी मिल गया. हमको इसका क्या निकालना है फिर? ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 5 kg तो मून पे कितना रहेगा? 5 kg. मतलब मून पे भी इसका 5 kg रहेगा. एक आंसर को तो हमको मिल गया, राइट? डायरेक्टली यहाँ से, जैसा मैंने बोला, मास इज सेम एवरीवेयर. आप अगर 40 kg के अर्थ पे रहोगे तो आप 40 kg के मून पे, मार्स पे, वीनस पे, मर्क्यूरी के, जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वो प्लैनेट पे आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता. आपका चेंज क्या होता है? वेट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर डायरेक्टली दे दिया है इसका मास का. आप अगर डायरेक्टली 5 kg भी लिख देते तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा यहाँ पे, राइट? इट इज़ रियली सिंपल. बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द weight of the object on moon. Okay, and what is the condition? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of the earth, that on the earth. मतलब हमको पहले अभी
अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, उसके बाद उसको 6 से डिवाइड करना है और मून के लिए उसका वेट निकालना है. दैट इज रियली सिंपल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी इन दिस न्यूमेरिकल. ओके, व्हाट इज गिवन? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन. हमको दोनों दिया है, हमको पता है व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ. वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू WE इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. ओके, इसमें से हमको वेट पता था, मास पता है, जी पता नहीं है, राइट. सो हम क्या करेंगे, 49 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 सॉरी GE हमको जी की वैल्यू निकालनी है. तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड. सो GE इज इक्वल टू 49 अपॉन 5 एंड इफ यू डिवाइड 49 बाई 5 व्हाट विल गेट 9.8. सो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मिल गया. क्या है? GE इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमको मून पे निकालना है. GM इज इक्वल टू 1/6 GE, राइट. G का वैल्यू क्या निकाला है? 9.8. इफ यू डिवाइड 9.8 बाई 6 व्हाट विल गेट 1.63. व्हाट विल गेट 1.63. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GM इज इक्वल टू 1.63 meter per second square. Don't forget to write this unit. Okay, unit is really important. Okay, now we all know what is the weight on moon. What is the formula of weight on moon? Is equal to weight on moon is equal to mass on moon into acceleration due to gravity on moon. So what will happen? What is the mass? 5 into 1.63 and if you multiply this you will get 8.15. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 8.17 आया, यहाँ पे 8.15 आया. ओके, 8 is important. This is quite, you will get it is near to 8.17. So 815 is also correct. So you can write it like this, 8.17. Okay, both answers are acceptables. If you find this also, you will get full marks. Okay, now equations are done. If you see this equation and this equation are really simple. Okay, it can be done with the help of this formula. F is equal to GM1 M2 upon R square. इससे हमको मिल जाएगा GMM अपॉन R स्क्वेयर. ओके, इससे हमको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे 1 and 2. ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन हमने देखा हुआ है, राइट. ये हमारा वो न्यूटन्स के मोशन के इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा. V इज इक्वल टू UT प्लस ये वाला देखो, ये वाला तो आपको पता है, राइट. वी हैव सीन दिस, राइट. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर. हाइट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 5. कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS. V क्या होता है? 0. U स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, राइट. अपवर्ड जाएगा तो G क्या रहता है? निगेटिव. तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, राइट. लाइक दिस वी हैव सीन दिस इक्वेशन, राइट. This is also similar and from this is also one similar equation. So according to me we have covered everything for this chapter. Okay, so I request you all to please go through all the content. Okay, this chapter contains theory, derivations, numericals, everything it has. So this is really interesting chapter. You might have learned it. Okay, and I also request you to please go through the free fall experiment which I have shown you to watch on YouTube. Okay, go to YouTube, watch the free fall experiment. Okay, go to that site. It is really interesting. You will be able to see how feather and one stone, they are dropping it from one height, and due to the alone gravitation force, how they are reaching on time on Earth's surface. Okay, so that's all for this chapter. Okay, in the next one we are going to see heat transfer, right? Heat chapter. Okay, so please go through all the content and learn. Okay, thank you so much.